अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं किक ऑफ ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप मैट, जहां हम लाए हैं आपके लिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन। जी हां, द बिगेस्ट इवेंट इन द वर्ल्ड जस्ट गॉट इवन बिगर। फुटबॉल की तारीख में पहली दफा 3 ममालिक मेजबानी करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की, और फुटबॉल की तारीख में पहली दफा 48 ममालिक 48 टीमें मुकाबला करेंगी टू डिटरमिन who becomes the champion of the world come July 20th, 2026. It will be a blockbuster event और आप इस blockbuster event के तमाम तर मैचेस, तमाम तर गोल्स, तमाम तर एक्शन बराह रास्त देख सकते हैं only on PTV Sports and TapMad। और इस blockbuster ट्रांसमिशन में आपका साथ देगी हमारी blockbuster टीम at kickoff। और इससे पहले कि मैं आगे चलूं, it is my great honor and privilege to introduce one of my absolute favorite people in the world, my co-host, the super talented Roha Nadeem। Roha, सबसे पहले तो it's always great to work with you. Secondly, आपका पहला FIFA World Cup transmission है, so congratulations, and how are you feeling? Thank you so much, Heather. First of all, for that introduction, what a high energy introduction, completely setting the tone for what is surely going to be a brilliant and a blockbuster transmission and a tournament. And yes, you're right, this is my first ever FIFA World Cup transmission. For anyone who works in sports, सबकी ये ड्रीम होती है कि आप फीफा वर्ल्ड कप को कवर करें, एंड टू हैव दिस ऑनर टू ब्रिंग यू दिस ट्रांसमिशन अलोंगसाइड अ फीफा लेजेंड, ओह माय गॉड, अ फुटबॉल एक्सपर्ट। एंड व्हेन वी इंट्रोड्यूस द पैनल शॉर्टली, तो आपको पता लगेगा कि हमारा पूरा पैनल ही जो है वो इट्स अ ग्रुप ऑफ legends who have been involved in football for so long, whether it's through playing या through their own analysis and a passion। तो cannot wait to get the show going। I think introduce करवाएं फिर guests को अपने। आप बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाएं, शुरू करें यार। मैंने तो इतनी एनर्जी शुरू में डाल दी, मैं पानी पीऊंगा, आप शुरू करें। जबरदस्त जी, we have quite a panel here for you on kickoff। सबसे पहले we have former international footballer, she's Pakistan's very own attacking midfielder, she's 2-time Guinness World Record holder, Abiha Haider। Assalamu alaikum Abiha, thank you so much for being with us, it's a pleasure to have you। Assalamu alaikum, thank you for having me on the show, and indeed it is a pleasure for me as well to be here today। Zabardast, we've also got a familiar face, another familiar face is part of this panel, former Pakistan under-17 striker. He's also a sports analyst. You've seen him on your PTV sports screens talking Premier League, talking football. We've got sports analyst Hassan Azam joining us। Assalamu alaikum Hassan, great to have you. Thank you so much for joining us। Walaikum assalam. Absolute pleasure. Like you, it's my first World Cup, Roha, and equally sharing the excitement here with this esteemed panel, and just loving and waiting to kick off, as Haider bhai said। Well, we're counting down to kick off, and we've got another ज़बरदस्त हमारे एक और पैनलिस्ट हमारे साथ जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया हुआ, जो हमारा साथ देंगे थ्रू आउट दिस ट्रांसमिशन। पाकिस्तान under-14 international football player, he's also a polo player, and he's such a multi-talented person। We've got him to share his football analysis with us। Turab Rizvi is joining us। Assalamu alaikum Turab, thank you so much for joining us। Pleasure to join you guys. Honestly, it's a dream coming on a World Cup show as a kid growing up with football, and I'm really looking forward to working with everyone, and really excited to get going। Really excited to have all of you, and I think there's one more guest left वो मेरे लिए छोड़ दें, वो हैदर अजहर करवाएंगे, वो मेरे लिए छोड़ दें। देखिए सिचुएशन ये है कि आज जो ओपनिंग सेरेमनी भी होगी फीफा वर्ल्ड कप की, एंड इट विल बी अ कलरफुल ओपनिंग सेरेमनी व्हिच विल बी हेडलाइंड बाय शकीरा, हु इज हेडलाइनिंग हर 4th FIFA World Cup। और हमारे स्टूडियो की शकीरा, who's headlining our show, is none other than Sardar Rehanul Haq, a prominent sports writer here in Pakistan and football writer। और रेहान, आपकी मेरी जर्नी FIFA World Cup से ही स्टार्ट हुई थी 2014 से। We're back home on PTV Sports, so how's it? पहले तो वो कहते हैं इट्स कमिंग होम, इट हैज़ कम होम, तो आई एम हैप्पी टू बी बैक हियर आफ्टर 12 इयर्स। दूसरा, ये आपने मेरी इंट्रोडक्शन करवाई, तो आपने ये भी कहा कि उनके लिए एज अ चाइल्ड ग्रोइंग अप इट वाज हिज ड्रीम टू कम ऑन टीवी डूइंग द वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन।
तो तराब आज से 12 साल पहले तो शायद पैदा भी नहीं होगा जब आपने अपनी पहली ट्रांसलेशन की होगी तो और आप भी इसी और ट्रांसलेशन थे, बट चलिए आगे चले। मैं तो छोटा था। तो दूसरा ये कि मैं कभी भी इतनी एनर्जी मेरे में ना होती अगर मेरी टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना करती तो It's not. This was too soon. I was waiting for this. हम Ouch, इसको है build भाई। up देने वाले थे। आते ही But guys, in the first 7 minutes, पहले ही 7 minutes में हमने ये acknowledge कर लिया है कि you really are too happy for someone who उनकी टीम ने for the third consecutive time qualify नहीं किया है in the Nothing at tournament. stake. जो होना था वो हो गया, ठीक है, जो होना था वो हो गया। लेकिन अब जो एक बात है वो ये है कि मैं वो नहीं होता कि डिस्ट्रैक्ट करूंगा लोगों की कॉन्वर्सेशंस को, तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट करूंगा। गम को छुपाने की कोशिश। गम को छुपाऊंगा और गम डेफिनेटली छुपना भी चाहिए, क्योंकि कल पाकिस्तान की टीम ने एक इंटरनेशनल टाइटल जीता है रोहा, द डायमंड first इंटरनेशनल कप सॉरी in Maldives, right, which Pakistan managed to win, and they went unbeaten. Hassan, मैं आपके पास आऊंगा because you've been following the rise of, or at least the revamp of the Pakistan youth system. So if you can just talk a bit about that. I think it's so exciting, especially given the World Cup. On the eve of the World Cup, winning that title and Solano just bringing in that vision for Pakistan football. I think जैसे ही वो आए थे उन्होंने कुछ चीज़ों पे हाईलाइट किया था कि इन चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तानी डायस्पोरा को लेके आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूथ सिस्टम बेहतर हो। और इस विन के बाद जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमने एक फाइनल जीता है, क्योंकि मतलब 50 साल पहले हम वो एक ज़रूर जीते थे टूर्नामेंट, बट वो ग्रुप्स का टूर्नामेंट था, इस तरह की नर्व्स, इस तरह की एंटिसिपेशन नहीं थी। विनिंग दैट इज़ ह्यूज एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ जो उन्होंने जुमला कहा ये टूर्नामेंट जीत के इट ब्रिंग्स बैक बिलीफ इन पाकिस्तानी फुटबॉल। आप जर्मनी की हम बात करते हैं, यर्गन क्लिंसमैन को देख लें, 2004 में उन्होंने इस सिस्टम को चेंज किया, यूथ फुटबॉल को प्रायोरिटाइज किया, उन्होंने क्लब स्ट्रक्चर्स बनाए, बायर्न म्यूनिख जैसे क्लब्स को कहा कि हम यूथ पे फोकस करेंगे। इस इनिशिएटिव से आप उसके रिजल्ट आपने देखे 2014 में, पीपल लाइक नोयर, पीपल लाइक क्रूस, दे ऑल केम थ्रू दैट सिस्टम। ओजिल, मोरक्को की भी हमने राइज देखी है। 2010 में उन्होंने भी सिमिलर रीवैम्प किया था अपने स्ट्रक्चर को, जहां पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया और चीजों पे इन्वेस्ट किया, उसके रिजल्ट्स हमने अब देखे। अर्जेंटीना डिड द सेम, पैकरमैन ने उनके लिए किया था, होजे पैकरमैन, एंड वी गॉट द रिजल्ट्स इन 2022। सो आई थिंक Solano, the man, is with the right vision, and it's so good and hopeful to see where Pakistan football is heading now. And I think he encapsulated it perfectly when he said it brings back belief. It brings back belief indeed. Turab, what do you have to say about this win? It's a historic win. What does this win mean for the future of Pakistan football? For the future of Pakistan and personally for myself as a young athlete growing up in this country, it's nice to see us winning other sports. Football, cricket हमारा कौमी sport है, लेकिन football is an untapped sort of unlimited potential in this country. We can see that, and someone like myself seeing that, and Pakistani future football fans, this is very important for the generation that comes next. I have personally never seen Pakistan win more than 2 or 3 games in a row before, barely even seen them score actually. So seeing that, seeing a bicycle kick in the final, something that, you know, it just excites you and it just makes you look forward to something exciting coming up, and I can see that in this very young and talented group. लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात कहूँगा, आपने यहाँ पे क्रिकेट को कौमी खेल कह दिया, इस दफ़ा हमने यार फिर हॉकी को भी, हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया, जो हमारा कौमी खेल है, और उसकी भी ट्रांसमिशन करनी पड़ सकती है। अच्छा, तो आप ना कुछ छोड़ना, कुछ ना छोड़ना, गुल्ली डंडे पे कमेंट्री शुरू कर। Just being practical, but I think इतने positive और uplifting scenes थे जब हम, even when we were looking at the clips on social media. But Abiha, on the flip side, if you look at the women's football circuit, वहाँ पे भी recently बहुत development हो रही है. We are winning and the team makeup is looking so exciting right now. What can you share about the future of Pakistan women's football? Absolutely, I think after a decade now, we are finally seeing that the women and the men's team are finally coming into a shape. And when we talk about the women's team as well, they have also been playing the qualifiers now. They're going out for friendlies. They're finally coming into the FIFA series. They have played well. They have won matches and everything. So I think now with this foreign diaspora, Pakistani diaspora coming in, and then the local players also getting that exposure. And the exposure right now is what every player in Pakistan needs, because obviously the level of training, the level of fitness
needed for the international matches to compete is what we need over here. So finally we are now witnessing this era that Pakistani men and women teams have finally stepped into the right direction, and with the same amount of effort being put in, I think it wouldn't be far away that we will be seeing women team as well lifting trophies then. अच्छा अभी हम क्योंकि यहाँ पर काफ़ी नॉस्टैल्जिक भी हुए हैं, एटलीस्ट मैं और रेहान, मेरे लिए एक और बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट 12 साल पुराना वो है कि फीफा वर्ल्ड कप के बाद मैंने पीटीवी के लिए जो एक और ट्रांसमिशन की थी वो सैफ वुमेन चैम्पियनशिप थी, एंड वी हैड द ऑनर एंड प्लेजर ऑफ वाचिंग यू प्ले ऑन द फील्ड. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट वी आर सुपर प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड फॉर पाकिस्तान ऑन द फील्ड, एंड यू वर अ रिमार्केबल फुटबॉलर एंड यू स्टिल आर, बट मुझे पता है उस तरह नहीं खेल रही, बट खैर एनीवेज. रेहान, अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, और अगेन मैं सेगवे ले लूँगा कि पाकिस्तान की विन से ही हम हमेशा हिस्टोरिकली बात करते हैं कि ये जो वर्ल्ड कप आता है जो हर 4 साल बाद आता है, ये एक वाटरशेड मोमेंट होता है यंग फुटबॉल फैंस के लिए. काफ़ी ज़्यादा जो प्लेयर्स जो आप फुटबॉल को नॉर्मल रूटीन में ना भी फॉलो कर रहे हो, जब वर्ल्ड कप आता है आप उसे फॉलो करते हैं और आपकी एफिलिएशंस बननी शुरू हो जाती हैं. तो एक तो टॉक अबाउट हाउ World Cup becomes the first triggering point for young fans, and also talk about what impact it's going to have with 3 hosts. I think सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में हम अक्सर कहते हैं, जिस तरह मैंने आप बात की कि आप इटली के फैन, इटली डिड नॉट क्वालिफाई. क्लब फुटबॉल आप तब फॉलो करते हो, कोई भी पाकिस्तानी जो यंग बच्चा है ना, वो 6-7 साल का, आप मैनचेस्टर नहीं रहते तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को आप सपोर्ट करना शुरू किया, ओके फाइन, बट मोस्ट पीपल इन पाकिस्तान, कैजुअल फैंस हु टेक फुटबॉल सीरियसली इज आफ्टर वर्ल्ड कप. वो वर्ल्ड कप देखते हैं, वर्ल्ड कप से उनकी एक अटैचमेंट होती है. देयर इज दिस, अभी भी हम डिस्कस करते थे शो से पहले भी कि मैचेस के टाइमिंग्स ऑड है, पर ये गर्मियों की छुट्टियां हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो ये मैचेस देख रहे होंगे, उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा. वो फुटबॉल को दे विल इन्वेस्ट इन फुटबॉल, इमोशनल इन्वेस्टमेंट होगी, और उसके थ्रू फिर देयर फेवरेट प्लेयर्स विल गो प्ले क्लब फुटबॉल, और वो उस तरह उसके फैंस बनेंगे. दैट्स हाउ द इकोसिस्टम वर्क्स, एंड व्हाई दैट्स व्हाई अ वर्ल्ड कप इज बिगर देन एनीथिंग एल्स. वी फॉलो क्लब फुटबॉल ऑल द टाइम. और इसी से जो आपने बात की वाटरशेड मोमेंट की, और हाउ द टाइमिंग ऑफ एवरीथिंग, ये 3 जो नेशंस के अंदर भी हो रहा है, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये फॉर एनीथिंग टू कंटिन्यू द सिस्टम हैज़ टू बी इन प्लेस. अभी हमने बहुत अच्छी बातें की ऑन पाकिस्तान फुटबॉल के, सोलानो आए, उन्होंने ये किया. पाकिस्तान में अभी तक फुटबॉल लीग नहीं हो रही. पाकिस्तान में जब तक फुटबॉल लीग नहीं होगी तो उसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म हमें नहीं मिलेंगे. हम मोरक्को की, हसन ने बात की, मोरक्को इस वर्ल्ड कप के अंदर, आई एम लिंकिंग टू दिस वर्ल्ड कप बिकॉज मोरक्को इस वर्ल्ड कप के अंदर आर नॉट एन अंडरडॉग. दे शुड क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स एटलीस्ट, जो उनका ड्रॉ भी उससे. दैट इज बिकॉज द सिस्टम वॉज क्रिएटेड अराउंड दैट डायस्पोरा. डायस्पोरा इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम तो 20 साल पाकिस्तान में ये डिस्कस करते रहेंगे यार ये लोग प्लेयर बाहर खेलते हैं, पाकिस्तान आके कैसे खेल सकते हैं, और पूरी दुनिया ने वो मॉडल फॉलो करके वर्ल्ड कप्स के लिए क्वालिफाई किया और हम इसी में फंसे रहे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी यूज़ दिस मोमेंट, वी यूज़ द वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप में जितनी आई बॉल्स हैं कि फुटबॉल को अटेंशन मिले जो फुटबॉल डिजर्व करता है. और तो आपने कहा कि पाकिस्तान जो है क्रिकेट के अंदर ट्रॉफी जीता, तो हम क्रिकेट में भी ट्रॉफीज नहीं जीते. जस्ट FYI. बट आई थिंक ये, और मैं वो आई वाज लुकिंग एट सम ऑफ द कमेंट्स, कुछ लोग कहते हैं आप ये तो ऐसे सेलिब्रेट करें जैसे वर्ल्ड कप जीत गए हैं, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिए. वो खुदा का खौफ करो यार, 200 से ऊपर आपकी रैंकिंग थी, आप पहली दफ़ा अंडर 200 आए हैं, पहली दफ़ा नहीं काफ़ी देर बाद अंडर 200 आए हैं. तो सेलिब्रेट दिस, सेलिब्रेट द फुटबॉल वर्ल्ड कप, एंड थ्रू दिस create awareness among people and raise funds for infrastructure in Pakistan and better fan experiences, and that's the only way the sport will grow in Pakistan. And young fans इससे कितना inspire होंगे. अभी हम यही बात कर रहे थे कि a lot of people actually associate with the FIFA World Cup when they think back of the moment when they fell in love with football. So I think Hassan, it's a great occasion, and this because ये सबसे बड़ा World Cup है, 3 countries को host कर रही हैं, इस World Cup में भी we're going to see a lot of यंग टैलेंट, यानी कि वो जो अब अगली जनरेशन को शेप करेंगे. लमीन यमाल हैं उसमें, पेड्री हैं उसमें, बहुत एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं. एनीवन इन पर्टिकुलर दैट यू आर एक्साइटेड टू वॉच? आई थिंक आदर गुलर टर्की के लिए ही इज़ वेरी एक्साइटिंग. गिल्डिज इज़ वेरी एक्साइटिंग. एक 17 साल के मैक्सिको के प्लेयर हैं, वो बहुत एक्साइटिंग है. ही इज़ गोना बी वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि एक्चुअली यंगेस्ट प्लेयर हैं मैक्सिको की तरफ से टू एवर बी प्रेजेंट एट द वर्ल्ड कप. लमीन यमाल की आपने बात की, सो मेनी किड्स लुक अप टू हिम, सो मेनी किड्स फॉलो हिम. एंड आई थिंक जो रेहान जिस पॉइंट को टच कर रहे थे, दैट्स सो इंपॉर्टेंट, जो सोलानो भी बात करते हैं, ब्रिंग्स बैक बिलीफ, इज व्हेन यू यंग फुटबॉलर्स इन पाकिस्तान और एस्पायरिंग फुटबॉलर्स सी यंगस्टर्स परफॉर्म, दे गेट इंस्पायर्ड टू पिक अप दैट स्पोर्ट. और आप दोनों जो बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप ये हम माशाल्लाह हमारे पास 40 दिन है लोगों को इंस्पायर करने के लिए. वक्त हो रहा है ब्रेक का वक्त हो रहा है. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विल कंटिन्यू विद आवर
premier show Kickoff on PTV Sports and TapMad. We'll be right back. USA police on the run. Mexico, Jimenez, here we come. Canada, Davies wear the crown. Argentina, Messi don't back down. Brazil, Vinicius feel the heat. Ji, welcome back to kick off your official home for the official FIFA World Cup 2026 coverage. You're watching us live on PTV Sports and TapMad, and don't forget you will be catching all of the FIFA World Cup action right here on Kickoff. Break से पहले थोड़ा सा build up हमने किया. We talked about the Pakistan victory as well. But now let's shift our focus to what we can expect in this tournament. हमने बात तो की कि ये tournament अब 48 टीम्स को इंक्लूड कर रहा है. इट्स बिगर देन एवर. 104 मैचेस, 16 आइकॉनिक वेन्यूज, बट कुछ ओमिशंस भी हुई हैं एंड वी टॉक्ड अबाउट दोज ओमिशंस एज वेल. Someone's favorite team did not make it to the FIFA World Cup for the third time. और अगर आप लोग भी इटली फैंस हैं तो really sorry, but क्या ऐसा रीज़न है कि इटली, despite it being such a big World Cup, still they have not been able to make it for the third consecutive time? It's very disappointing. As an Italian fan, it is very disappointing. लेकिन अगर आप इटालियन फुटबॉल को फॉलो करें तो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि काफ़ी हद तक जो गेम है उसकी ग्रोथ वहाँ पे स्टैग्नेट कर गई है. द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ फॉलोइंग अपार्ट. सीरिया इज़ नॉट द लीग दैट इट यूज्ड टू बी. और कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हैं कुछ मैचेस में, उन्होंने की मोमेंट्स पर दे लॉस्ट इम्पटस देयर. एंड आई ऑनेस्टली थिंक कि जो भी कैंपेन लीड कर रहे थे, इट वाजंट द बेस्ट ऑफ कैंपेन्स. लेकिन जहाँ पर ये होता है फिर वहाँ पर इटली कोई अंडर 17, अंडर 20 यूरो जीत जाता है, फिर ऑटोमेटिकली फिर उसका तो आता है. यार ये मेरा बहुत लंबा रैंट है. आई थिंक आई शुड बी क्वाइट नाउ. चले बाकी के अब हम सारे ग्रुप्स भी देखेंगे, बिकॉज आई थिंक यू नीड टू पिक अ न्यू टीम. So I think के 12 groups of 4 teams each, and this is what the roster looks like. ये format भी change हुआ है रेहान. Of course we have now seen के 48 की teams हैं और अब उसके बाद एक round of 32 होगा and then 16 and so on. Do you think that this creates more inclusivity, or are you on the other side of this debate and you think कि इससे जो है competition थोड़ा सा effect होगा? I think पहली चीज़ तो ये है कि जब टूर्नामेंट 16 से 24 हुआ, 24 से 32 हुआ, हमेशा यही आर्गुमेंट होती है कि क्वालिटी कम हो जाएगी या ये कम हो जाएगा या वो कम हो जाएगा. फिर अक्सर आप यूरोपियन कंट्रीज़ का सुनते हैं कि वो कहते हैं कि जी यूरो जीतना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज वो बड़ा कम्पिटिटिव होता है. तो अगर यूरो जीतना इतना मुश्किल होता है और बहुत कम्पिटिटिव होता है तो वाई इज़ इट कि मोरक्को जैसी टीम जो है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचती है. साउथ कोरिया जैसी 2002 वाली स्टोरी आपको सिर्फ वर्ल्ड कप में मिलती है. तो आई थिंक इट्स गुड फॉर द गेम कि वो ग्लोबली इतनी ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं. इट्स अ ग्लोबल गेम, इट्स अ गेम ऑफ द पीपल. फुटबॉल इज़ अ नंबर 1 स्पोर्ट इन मोर कंट्रीज एन एनी अदर स्पोर्ट. तो फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान में क्रिकेट की अक्सर बात करते हैं. क्रिकेट नंबर 1 स्पोर्ट कितने मुल्कों में? 3 से 4 मुल्कों में नंबर 1 स्पोर्ट है. फुटबॉल इज़ अ नंबर 1 स्पोर्ट इन मे बी मोर देन 100 कंट्रीज. सो इट इज़ अ पीपल्स गेम. तो अगर जितने ज़्यादा मुल्क होंगे उतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन आएगी. और ये अक्सर बात करते हैं कि XYZ की पॉपुलेशन बहुत कम है, उस मुल्क को क्वालिफाई करवाया तो क्वालिटी कम है. अगर पॉपुलेशन के ऊपर क्वालिफिकेशन करनी तो नेदरलैंड्स हो गया, ऐसी टीमों को भी नहीं फिर आगे आना चाहिए. बट द पॉइंट इज़ कि इस वर्ल्ड कप से होगा कि उन कंट्रीज़ की जिनकी पहला वर्ल्ड कप है, हो सकता है in 10 years down the line, 12 years down the line, they have good enough World Cup teams where they also get the diaspora and they can then compete at this level. इस टूर्नामेंट में एक टीम है जिसके स्क्वाड में 15 प्लेयर्स ऐसे हैं जो उस मुल्क में पैदा भी नहीं हुए. They were born and bred somewhere else and 15 players are now playing for that country. So I mean इससे आप देखें कि उन प्लेयर्स को भी कितनी अपॉर्चुनिटी है जिनका ड्रीम है वर्ल्ड कप खेलना. फ्रांस फॉर एग्जांपल, फ्रांस की स्क्वाड में आप किस तरह आएंगे? इस वर्ल्ड कप में आपको तकरीबन हर टीम मिलेगी जिसमें कोई फ्रेंच प्लेयर होगा. तो I think that's a big thing and I think it's a great change. I think it will add a lot of value. Again, at the end of the day, it's a global event. मतलब मैं उन traditionalists में से हूँ जिन्हें 32 seemed like the perfect number, और मेरी उसके पीछे रीजनिंग यही थी कि यार ग्रुप में 4 टीमें हैं. अब यहाँ पर काफ़ी हद तक ग्रुप ऑफ डेथ का एलिमेंट काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज 8 थर्ड प्लेस टीम्स विल गो थ्रू टू द राउंड ऑफ 32. बट ऑन द फ्लिप साइड राउंड ऑफ 32 से ही एलिमिनेशन शुरू हो जाएगी. अभिया
इस पे ही बात करते करते, बिकॉज देखिए आपको पता है कि कुछ छोटे मोटे ना चीज़ें होती हैं वर्ल्ड कप के साथ एफिलिएटेड जो फैंस बड़ी खुशी खुशी से देखते हैं, एंड वन ऑफ देम इज व्हेन यू टैग अ ग्रुप एज अ ग्रुप ऑफ डेथ। आपके ओपिनियन में इज देयर अ ग्रुप ऑफ डेथ? आई थिंक ग्रुप ऑफ डेथ हम देख सकते हैं अभी जब हम ज़रा ग्रुप्स वगैरह को दोबारा से एनालाइज करेंगे, बट अभी हम बात कर रहे थे कि इटली इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, राइट? बट जब हम उन टीम्स की बात करते हैं, उन कंट्रीज़ की बात करते हैं जो इस वर्ल्ड कप का पार्ट अभी नहीं हैं, तो यूरोप के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेज इज़ दैट डेनमार्क इज़ नॉट इन द वर्ल्ड कप। देन जब हम कैमरून की बात करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ वुड डेफिनेटली बी मिसिंग कैमरून नॉट कमिंग इनटू वर्ल्ड कप। नाइजीरिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री जिधर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है बट कंसिस्टेंसी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इमेंस फुटबॉल टैलेंट है बट प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी नॉट बीइंग शोड अप, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो दोज कंट्रीज़ आर नॉट बीइंग पुल्ड अप टू द चांस दैट वो वर्ल्ड कप खेलें। और अब अंडरडॉग टीम्स या नए मुल्कों को, नई टीम्स को चांस मिल रहा है कि वो इस वर्ल्ड कप में आए। सो डेफिनेटली कम्पिटिटिवनेस इस वर्ल्ड कप की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, and with this many teams coming into one single World Cup trophy, aiming for one single World Cup trophy, so I'm sure कि quality of football जो है वो enhance होगी, FIFA को रखनी पड़ेगी, otherwise obviously फिर fans are always there to shout upon that as well. अच्छा हसन, रूल चेंजेस भी हमने पिछली दफ़ा देखा कि लास्ट टाइम 2022 का जो वर्ल्ड कप था, फीफा वर्ल्ड कप, उसमें सबसे ज़्यादा VR डिसीजंस एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पेनल्टी award हुई थी, and I think that was expected with the changes in rules, and we have a number of rules that have been changed. Let's just talk a bit about those. आपके नज़दीक ये देखें, expanded VAR powers to correct wrong corner kicks, attacking fouls and build up. Are we going to see the record of the last World Cup being broken by the number of penalties and red cards given? I hope not, क्योंकि गेम के फ्लो को बेहतर करने के लिए कुछ चेंजेस लिए गए हैं, और आई थिंक जहाँ पे टाइम को और टाइम वेस्टेज को कट शॉर्ट किया गया प्लेयर्स की तरफ से भी, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन वाला रूल इंट्रोड्यूस हुआ है, या आपने थ्रो इन्स कितनी जल्दी लेनी है, गोल किक्स कितनी जल्दी लेनी है, वो रूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो दूसरी तरफ VAR रेफरीज को भी बताया जाएगा कि आपने क्विक डिसीजंस लेने हैं। आई थिंक इसमें मिनिमाइज किया जा रहा है, सम ऑफ देम आर लिटरल कॉमन सेंस, कि गेम के फ्लो को और कंपेटिटिवनेस को एनहांस किया जाए, कि वो जो टाइम वेस्टेज अक्सर फैंस के हार्ट ब्रेक मोमेंट्स क्रिएट कर देती हैं, और 1-0 लीड कर रही होती है और टीम, आप देख रहे होते हो कि अब अगले 30 मिनट हर बंदे ने अपने काफ को पकड़ना है, या अपनी थाई पकड़नी है, या सर पकड़ लेने हैं, उसको जो है वो मिनिमाइज किया जा रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन टू होपफुली ब्रिंग मोर फ्लो टू द गेम एंड मेक इट मोर चैलेंजिंग। Absolutely, and a number of interesting rule changes. हमने भी VR powers की बात की, set piece timing का भी एक rule तो अब change हुआ है। अब now there is going to be a 5-second countdown for throw-ins and goal kicks. Essentially तो यही इसके पीछे reasoning है कि आप time wastage को minimize कर सके और efficient उसको बना सके। What are your thoughts on this set piece rule change? I think this rule change is heavily influenced by the previous club season that we've seen. Arsenal जैसी teams that take their time on set pieces, take 15 seconds, 10 seconds, really like settle in, take their time, and then it gives them a lot of time to do something which the other team doesn't expect. This forces other teams to restart the play quickly, and it gives the opposing team, whoever is on the other end of it, just less time to think, and it makes it a bit more exciting in that way. I like a faster flow of game. Any sport you play, you want it to be quick and engaging. You don't want it to stop. 2 मिनट के लिए गेम रुक जाती है, someone is down injured, आप सोच रहे हो इवन एक डिसिप्लिन रूल के भी हमने थोड़े चेंजेस देखे हैं। कवरिंग माउथ इन कन्फ्रंटेशन विल नाउ गेट यू अ रेड कार्ड। यार उसे तो रेड कार्ड देना, जैसे कहता याद रखा Look at him, we already have one. उस पे तो सबसे पहले रेड कार्ड उसे निकाल लेना, बाहर कर celebration right there. No, but that's exciting and that's also a bit controversial, but इस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आई थिंक ये मुंह पे हाथ रखने वाला रूल से तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि फुटबॉलर्स की भी एक पर्सनल स्पेस होती है, एंड वो कोई भी बात करें, और आप स्पेनिश फुटबॉल, इटालियन फुटबॉल जो फॉलो करते हैं उनको पता है कि लिप रीडर्स बैठे होते हैं, तो मैच के अंदर कोई भी बात हो तो आपको आदत पड़ जाती है। अब एक बंदे को आदत है, वो पूरा साल ये करके आया है कि वो बात इस तरह कर रहा है,
तो वर्ल्ड कप के अंदर अगर आपने उसकी इतनी स्ट्रिक्ट पेनल्टी रखनी है तो बेसिकली मैच का मजा खराब हो जाएगा अगर किसी को ऐसा रेड कार्ड मिला। ये आई थिंक ब्रॉडकास्ट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि हमें बहुत दफ़ा अगर हंसी आ रही होती है तो हम भी अपने आप को कवर करते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेड कार्ड, इस पे ये कंट्रोवर्शियल इसलिए मैंने इसलिए रेहान से पूछा आपकी इस पे टेक क्या है, बट यू आर सेइंग दैट यू आर अगेंस्ट इट। आई एम नहीं, अगेंस्ट क्योंकि इट। रेहान जब You're अमूमन against बात it. करते हैं तो उनके वैसे ही भी हाथ आगे होना चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ पर अगर जल्दी से बात कर लें, अगेन गर्मियों में हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका में भी द वेदर इजंट पर्टिकुलरली ग्रेट। 94 में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो द फाइनल वो प्रॉपर इटली ब्राज़ील वाला जो था आफ्टरनून में था, इट वाज वेरी वेरी हॉट। एंड पहले हम सुनते थे कि एक सर्टन डिग्रीज के ऊपर हाइड्रेशन ब्रेक होती थी, बट नाउ द हाइड्रेशन ब्रेक हैज बीन मेड मैंडेटरी, राइट? सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस 3-minute hydration break. I think this is just sort of like another opportunity given to the coaches to discuss or reassess their tactics. I think players are now used to it. यूरोपियन फुटबॉल में भी काफ़ी होता है ये, इवन साउथ अमेरिकन क्वालिफायर्स के अंदर भी ये अलाउ किया जाता है, तो ये काफ़ी देर से हो रहा है। तो आई थिंक वर्ल्ड कप के अंदर अलाउ करना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वेदर कंडीशंस वैसे हैं, आप जितनी मर्जी वो ब्रेक्स ले लें, वेदर कंडीशन विल स्टिल इफेक्ट यू, नो मैटर आप जितना मर्जी ब्रेक्स कर लें, दे विल इफेक्ट यू। एंड द पॉइंट हियर इज के अ लॉट ऑफ द डिस्कशन फुटबॉल के ऊपर अक्सर डिस्कशन नहीं होती है कंडीशंस कितना मैटर करती हैं, बट कंडीशंस डू मैटर अ लॉट, स्पेशली इस वर्ल्ड कप के अंदर, बिकॉज यू नो जब कतर में वर्ल्ड कप हुआ था वो विंटर वर्ल्ड कप हुआ था, यहाँ पर जो वर्ल्ड कप हो रहा है देयर आर सम स्टेडियम्स विच आर एयर कंडीशनड, तो वहाँ पर इतना इशू शायद नहीं होगा, लेकिन गोइंग टू अस्टेका सी लेवल से इतना ऊपर वहाँ पे खेलना, मायामी में खेलना, इतनी गर्मी में खेलना और उन पिचेस पे खेलना विच आर नॉट फुटबॉल पिचेस एक्चुअली, तो दैट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग। एंड जो आपने 94 के वर्ल्ड कप फाइनल की बात की, that and the 1919 World Cup, both of them, the finals have to be the most terrible finals ever. मतलब वो दोनों, and part of it was because एक तो तब कंजर्वेटिव भी होता था कि वी डोंट वांट टू लूज दिस फाइनल, एंड सेकेंडली बिकॉज कंडीशंस ऐसी थी, 1990 में पिच वाजंट ग्रेट, 1994 के अंदर वेदर कंडीशंस weren't great. So I think it plays a huge part in that. नहीं इसमें, लेकिन ये जो ओवरऑल अगेन हमने इस पे डिस्कशन तो कर ली, वी डू अंडरस्टैंड कि इसमें गेम का फ्लो इम्प्रूव करने के लिए है, टाइम डिलेज रोकने के लिए, लेकिन अभिया अगर मैं आपसे यहाँ पे कॉन्वर्सेशन करूँ एज अ प्लेयर, ठीक है, आपके लिए एज अ प्लेयर जब इस तरह के रूल्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो बिकॉज आई थिंक ऑन सम लेवल गेम्समैनशिप में यू ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट वॉट एवर अपॉर्चुनिटी यू कैन टू गेट अ ब्रीदर और टू, ओवरऑल हाउ डज इट इम्पैक्ट team preparations? I think definitely with the new rules coming in, FIFA ने एक चीज़ तो बड़े कैटेगोरिकली सबको बता दी है कि भाई फुटबॉल खेलने आए हो तो बस फुटबॉल खेलो, वो टैक्टिक्स, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द टाइमिंग एंड ऑल दोज थिंग्स वो आपने नहीं करनी। एंड जब हम एज अ फुटबॉलर इस चीज़ को एनालाइज करते हैं तो ऑब्वियसली जब मैच के अंदर हम होते हैं तो देयर आर सर्टन सिचुएशंस इन द मैच जिधर आपको मैनूवर करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको टीम डिस्कशन के लिए थोड़े से टाइम चाहिए होता है। इवन जब आपको अपनी टीम की फॉर्मेशन वापस लानी होती है तो आप थ्रो बॉल में थोड़ा सा वेट करते हो या फ्री किक के अंदर वेट करते हो इन ऑर्डर कि आपके सारे प्लेयर्स अपने फॉर्मेशन के अंदर या एज पर द सेट पीसेस वापस आ जाए। सो एज अ प्लेयर दीज थिंग्स आर यूज्ड टैक्टिक्स के लिए या थोड़ा सा मैनूवर करने के लिए इन ऑर्डर टू प्ले द गेम द वे यू वांट टू, बट फीफा ने तो आई थिंक कैटेगोरिकली कह दिया है कि भाई फुटबॉल खेलने आए हो तो चुप करके फुटबॉल खेलो, कोई लेफ्ट राइट होने की ज़रूरत नहीं है। सो दे आर सेविंग द टाइम एंड आई थिंक इट इज़ प्रॉब्ली बिकॉज के क्वालिटी ऑफ फुटबॉल बेहतर हो। या बिल्कुल, एंड आई थिंक प्लेयर्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट तो रहा, बिकॉज यू योरसेल्फ हैव आल्सो प्लेड। Would it be frustrating to be on the receiving end of these stricter disciplinary rule changes? We've seen in recent football, like especially in club football as well, a lot of incidents where players in very important matches trying to get in someone's head psychologically, or they go up to him and then they might be slightly not, it might not suit the situation at times, but they say something wrong, and we've seen that with Vinicius, we've seen that with that fixture with Benfica as well. So I think FIFA is trying to take a bit of a different route than UEFA, where they're trying to actually, because everything is recorded, you can see what you're saying, so that's why they hide their faces. So I think in later stages it sort of avoids any confrontation like sparked from something wrong being said, and everyone knows they're held accountable. You say something wrong, aap kuch galat kehte hain, you will get a red card, because stuff like that is not tolerable in sports in my opinion. Absolutely, absolutely, and we can't wait to see कि ये rule changes कैसे impact करेंगे on a broadcast level as well. यहाँ पर एक break लेते हैं, but when we come back एक बहुत exciting चीज़ हम discuss करेंगे. How is Pakistan involved in this FIFA World Cup? Yes, you're right, Pakistan is involved. कैसे वो हम break के बाद discuss करेंगे. Please keep watching Kick Off only on PTV Sports and TapMat.
I was shackled and battling in a war with myself. I was praying and praying my way out of that hell. Same old boots, but they're off the ground. Devil try to catch me now. Now them chains don't rattle no more. Good Lord, I'm feeling alive. वेलकम बैक टू किक ऑफ ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैपमैट। अब थोड़ी सी देर पहले हम बात कर रहे थे इस वक्त जो रूल चेंजेस हो रहे हैं सारे और वो कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 पर, लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की एफिलिएशन विद दिस वर्ल्ड कप। जैसा कि आप सबको पता है कि आर बिलवेड सिटी ऑफ सियालकोट हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग फुटबॉल्स फॉर अ नंबर ऑफ वर्ल्ड कप्स, लेकिन इससे पहले कि हम उस पर बात करें, इस साल का जो वर्ल्ड कप फुटबॉल है ऑफिशियल बॉल, इट इज़ द ऑफिशियल बॉल इज़ कॉल्ड द ट्रियोंडा और उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। उसके अंदर वायरलेस सेंसर्स लगे हुए हैं, उसकी चार्जिंग खैर रेहान के फ़ोन से ज़्यादा की होती है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने, देयर इज़ मोर टेक्नोलॉजी इन दिस वन बॉल देन आर लैपटॉप्स कंबाइंड over here. So Rehan, if we can just talk about all these changes in sensors, say what is the biggest impact that is going to happen as far as the game is concerned? I think quicker decision making is very important. हम अक्सर देखते हैं कि ऑफसाइड जो है ऑटोमेटेड, अगर फुली ऑटोमेटेड ऑफसाइड हो जाए तो उससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। ऑल द कंट्रोवर्सी अबाउट उसकी टांग आ गया वो यहाँ पे, यू कैन इफ़ यू कैन मेक समथिंग ऑटोमेटेड, इफ़ यू कैन टेक दैट एरर कम्प्लीटली आउट ऑफ द गेम, तो उसमें क्या गलत बात है। और ये हमने डिफरेंट स्पोर्ट्स में देखा है कि जब टेक्नोलॉजी आई है हमेशा उसके अगेंस्ट ही लोगों ने बात की है, स्पेशली जो प्लेयर्स अपने टाइम पे एथलीट्स उस टाइम पे खेल रहे होते हैं उनको लगता है हमारा ज़माना बेस्ट था। बट प्रॉब्लम ये है कि विद टेक्नोलॉजी यू हैव टू इवॉल्व, एंड अगर वो गेम के लिए अच्छा है, अगर वो रिजल्ट्स के लिए अच्छा है, नो वन फील्स के मेरे साथ जाती हुई है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम इतने वर्ल्ड कप्स की बात करते हैं कि वो फलानी डिसीजन इस तरह चली जाती तो हमारी टीम वर्ल्ड कप के लिए आगे क्वालिफाई कर जाती, ये कर जाती। और फ्रांस वुडंट हैव क्वालिफाइड फॉर वन वर्ल्ड कप अगर ऑनरी का हैंडबॉल दे दिया जाता। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट कि ये चीज़ें अब मिनिमाइज होंगी। आई थिंक ऑफ साइड रूल इज वन ऑफ देम, कॉर्नर्स आप चेक कर सकते हैं, इतनी गोल लाइन टेक्नोलॉजी इज नाउ 1000 टाइम्स फास्टर एज वेल। आई थिंक इट्स अ ग्रेट एडिशन, एंड ये अक्रॉस फुटबॉल ही होना चाहिए, एंड पाकिस्तान शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, द वर्ल्ड लुक्स एट अस के शायद ये लोग नहीं कर सकते, बट बॉल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान इट्स अमेजिंग। एंड द अदर थिंग इज 2010 में जो वर्ल्ड कप में बॉल यूज़ हुई थी उसको इतने क्रिटिसिज्म मिला था, अब जो इसके अंदर चिप भी लगी है उसके अंदर उन्होंने एरोडायनामिक टेस्टिंग करने के बाद कि हाउ डज द बॉल मूव, एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ डेटा नाउ मैनेजर्स एंड कोचेस विल गेट के बॉल स्ट्राइक किस तरह हुई, क्या एंगल हुआ, स्वर्व कैसे करनी है, इट्स आई मीन इट्स अमेजिंग, सो एक्साइटिंग, एंड एज यू सेड कि it will help deliver the kind of data that we have never seen before in football, and एक तो matter of pride है ही for all of us पाकिस्तानीज़ की, ये सियालकोट में बनी है ये बॉल जहाँ पे 60 मिलियन एनुअली बॉल्स फुटबॉल बनती हैं और एक्सपोर्ट होती हैं। सो पाकिस्तान खैर है तो नहीं, खेल तो नहीं रहा इस वर्ल्ड कप में, बट स्टिल ये बॉल पाकिस्तान की तरफ से गया है। व्हाट डज दैट मीन फॉर ऑल ऑफ अस? इट मीन्स सो मच प्राइड। हम फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करते हैं, हम अक्सर अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि व्हाट डज इट मीन फॉर डिफरेंट नेशंस, किसी के लिए एक कथारसिस है, किसी के लिए एक साइन ऑफ प्रोग्रेस है, कोई वर्ल्ड चैंपियन बनने गया है, एंड जब कोई टीम वर्ल्ड चैंपियन बनती है तो हर बंदा उस मुल्क का फील करता है कि मैं भी वर्ल्ड चैंपियन। दैट्स हाउ वी फेल्ट व्हेन अरशद नदीम वन दैट गोल्ड मेडल, राइट? So similarly, we are the producers of the football that all these teams are going to be using across 3 nations is a matter of a lot of pride, and that also kind of gives credence to the fact जो हम पहले बात कर रहे थे कि late 1800s में एक ब्रिटिश सोल्जर सियालकोट में आता है फजल इलाही साहब के पास जो सैडल्स बनाते हैं एक फटा हुआ फुटबॉल लेकर लेदर का, और वो उसे सीते हैं और फिर उसे इनोवेट करते हैं और पैनल्स बना के उसकी स्टिचिंग बेहतर कर देते हैं, and the British all of a sudden realize why don't we get it made here, और जैसे ऐसे ही जब किसी चीज की बुनियाद बनती है you can become the best at it, and that's why one of the reasons is कि वो बुनियाद तब रखी गई और पाकिस्तान आज भी उस चीज को चैंपियन करता है। it's amazing, and we can do similar if we create a football culture with our youth. Absolutely, and it's a beautiful ball. हमने आपके साथ अभी उसकी टेक्नोलॉजी की साइड भी शेयर की, एंड ट्रियोंडा के पीछे जो मीनिंग है, it's called 3 waves in Spanish, and it represents the 3 host nations. So it's a beautiful message, it's a beautiful colorful football,
और फुटबॉल वर्ल्ड कप की जहाँ तक बात है इधर द फेस्टिविटी इन पाकिस्तान, ऑफ कोर्स यहाँ पे इतने फुटबॉल फैंस रहते हैं, स्पेशली इन कराची जहाँ का नेबरहुड लियारी इज़ फेमस फॉर इट्स पैशन फॉर फुटबॉल, एंड लियारी looks like is ready for the FIFA World Cup. This brave all along. What broke you once made you strong. Die die eco, dale, let's go. Die die eco. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। मैं मौजूद हूं इस वक्त कराची के इलाके लियारी में, और लियारी इस वक्त जो है हमेशा की तरह फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले बिल्कुल ऐसे ही मंजर पेश कर रहा है जैसे कि कोई होस्ट कंट्री होती है और वहाँ की गलियाँ, मोहल्ले, शहर सज जाते हैं। इस इलाके की जो एक खेलों से मोहब्बत है वो अब से नहीं है, एक दहाइयों से है। यहाँ से बड़े बड़े बॉक्सर, रेस मतलब यहाँ पे साइकिलिस्ट और सबसे ज़्यादा फुटबॉलर पाकिस्तान को यहाँ प्रोड्यूस हुए। इस ज़माने पाकिस्तान टीम के कई कप्तान भी यहाँ से थे। और अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर फुटबॉल वर्ल्ड कप को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। मेरा कम में देख सकते हैं झंडियाँ लगी हुई हैं, झंडे लगे हुए हैं, सजे हुए हैं, मेसी के, रोनाल्डो के, नेमार के, सबके पोस्टर लगे हुए हैं। और साथ साथ अभी भी यहाँ पर फाइनल टचेस की जा रही हैं। Everything you need it, now bring it like you mean it, just like you mean it. ये अभी यहाँ पे आप सबको देखो एकजुट है, एक साथ है। जब ये मैच स्टार्ट होगा ये सब एक दूसरे के खिलाफ होंगे, वो बोलेगा मेरा टीम, मैं बोलूँगा मेरा टीम। हम लोग जैसे दोस्त हैं, दोस्त एक साथ ही है, लेकिन जब टीम की बात आता है तो लड़ना स्टार्ट हम लोगों का। बस सबको ही ब्राज़ील पसंद है, क्योंकि लियारी को मिनी ब्राज़ील कहा जाता है, इसीलिए सबको ब्राज़ील पसंद है। और सबका फेवरेट प्लेयर नेमार ही है। नेमार जीतेगा। Now you got to believe, I believe, 'cause you know what it takes. विसल बजने का जी इंतज़ार हो रहा है कि हर मैच की विसल बजे यहाँ पर मैच। और ये लोग कह रहे हैं भाई रात को 12 बजे हो, 3 बजे हो, सुबह 6 बजे, 7 बजे। और पीटीवी स्पोर्ट्स आपको पता है बराह रास्त दिखा रहा है, तो पीटीवी स्पोर्ट्स भी पाकिस्तान के तमाम शौकीन फुटबॉल ट्यून करके बैठे होंगे और इस वर्ल्ड कप को एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह लियारी में फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे। Pele, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, Messi, Mbappe, Salah, Brazil. What a beautiful report there by Abdul Ghaffar, PTV Sports very own correspondent. Ghaffar, kudos to you. इतनी ज़बरदस्त आपके पैकेज था। रेहान, एक बकेट लिस्ट पे जो एक आइटम है ना मेरा, वो ये है कि कभी ब्राज़ील का कोई वर्ल्ड कप मैच लियारी में बैठकर होस्ट करना। दैट विल बी सो। और ये मुझे पता है नान मलिक साहब करा सकते हैं, लेकिन क्या कमाल हो सिचुएशन, स्पेशली अगर और आप सोचें वो तड़का लगाना है तो और तड़का लगाए, वर्ल्ड कप फाइनल हो और लियारी में बैठकर उसे होस्ट करें। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स वेयर फुटबॉल बिलोंग्स। और बिल्कुल नान भाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आपने बहुत अच्छा उन्होंने टाइम भी चुना ना, ऑन एयर बोल दो तो कोई बैकआउट भी ना कर सके। मैं लियारी की ब्राज़ील से जो वो है ना, द लव दैट लियारी हैज फॉर ब्राज़ील, इट्स क्रेजी। आई वेंट देयर एंड आई वाज टोटली सरप्राइज। हर घर के ऊपर ब्राज़ील का झंडा लगा हुआ है। और अब पोर्चुगल की बहुत ज़्यादा वहाँ पे फैन बेस बन गई क्रिस्टियानो की वजह से, एंड ऑल्सो बिकॉज देयर इज अ लिंक बिटवीन ब्राज़ीलियन फुटबॉल एंड पोर्चुगीज फुटबॉल एज वेल, एंड कल्चरली एज वेल। वन ऑफ द थिंग्स दैट ब्राज़ीलियन फुटबॉल डज इज, लियारी जैसी जगह पे क्यों फेमस है, ब्राज़ीलियन फुटबॉल जो इनिशियल ब्राज़ीलियन फुटबॉल है, दैट इज़ बेसिकली ब्यूटी, दैट इज़ यू गेटिंग आउट ऑफ समथिंग दैट ट्रबल्स यू। एंड आई थिंक कहीं भी दुनिया में जो वो वाली ब्राज़ील की फुटबॉल है ना, लाइक यू नो द सैम्बा स्टाइल फुटबॉल दे प्ले, इट्स एन एक्सप्रेशन। एंड आई थिंक दैट्स वाई ब्राज़ील दुनिया की सबसे लव टीम्स में है। अगर कोई भी न्यूट्रल से आप पूछेंगे, इट्स नॉट बिकॉज मतलब वो उनको प्लेयर्स का नाम भी पता होगा, लोगों को, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इट्स द काइंड ऑफ फुटबॉल दे प्ले दैट ब्रिंग स्माइल्स टू पीपल्स फेसेस। ऑल्दो ब्राज़ील की जो मोस्टली वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स होती हैं वो इतनी अच्छी फुटबॉल खेल के नहीं जीतते, वो डिफेंसिव टीम्स होती हैं, लेकिन उनके कुछ प्लेयर्स होते हैं वो ऑलवेज स्टैंड आउट। मतलब रोनाल्डो नज़ारियो हो गया, रोनाल्डिनियो हो गया, द स्किल्स दैट दोज गाइज हैव, नेमार, the joy that they provide, I think that's expression. The worry free football. Absolutely. The with joy. और एक और जो पैकेज में बहुत मज़ेदार चीज़ थी वो ये थी कि जिसमें वो बता रहे थे कि हम सारे दिखने में तो अभी दोस्त हैं, लेकिन जैसे ही मैच शुरू होगा ये मेरे से लड़ेगा और मैं इससे लड़ूंगा। तो अभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप भी किसी नॉन अर्जेंटीना फैन के साथ जो है आपकी लड़ाई हो जाती है ड्यूरिंग फुटबॉल मैचेस? आई थिंक दिस इज़ दी ब्यूटी ऑफ द गेम। और अभी जैसे हमने लियारी का पैकेज देखा तो लियारी में आई वुड लाइक टू कमेंट दिस थिंग कि फुटबॉल इज़ नॉट अ गेम, इट्स अ लैंग्वेज दैट इज़ बीइंग स्पोकन बाय दैट कम्युनिटी। उनके लिए ये एक उनकी लैंग्वेज है, दे टेक फुटबॉल एज द रिलीजन लिटरली। सो
अब जो अभी हमने पैकेज देखा है उस तरह जो उस कम्युनिटी को अगर हम वी ब्रिंग देम आउट इनटू द फुटबॉलिंग वर्ल्ड, हम वहाँ पर अपने फुटबॉल मैचेस कराएं, सो हम इस तरह की कम्युनिटी को कितना ग्रूम कर सकते हैं, दिस इज़ वन थिंग विच दे डिज़र्व, दे लिटरली डिज़र्व. एंड सेकेंडली ऑब्वियसली जब हम फुटबॉल की बात करते हैं, हम किसी भी स्पोर्ट की बात करते हैं, सो वी ऑल हैव आवर ओन फेवरेट्स. और यहाँ पर हमने पैनल में भी देखा या हम आगे भी फर्दर बात करेंगे कि हम सारों के अपने अपने फेवरेट्स हैं. सो डेफिनेटली जब हम अपनी टीम का मैच देख रहे होते हैं विद एनी ऑफ आर राइवल टीम या राइवल पैनलिस्ट, तो डेफिनेटली वो एक जो है वो मज़ा जो गेम का होता है, दैट वन ऑफ द टीम किसी और की टीम हार रही है या आपकी टीम जीत रही है, तो वो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गेम जो अब हम हेयर ऑनवर्ड्स पूरे वर्ल्ड कप में विटनेस करेंगे. और हम अपने शो के एंड में जो है वो प्रेडिक्शंस भी लेंगे, तो बिल्कुल लेंगे ये ऑन रिकॉर्ड होगा. आई थिंक जो पहले दिन की प्रेडिक्शंस होती है ना, क्या हम इनकी लड़ाइयाँ करवाने में कामयाब होंगे? नहीं, देखिए हमें कुछ जगहों पे लड़ाइयाँ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड टाइप टीम्स के फैंस होते हैं ना वैसे बहुत लड़ते हैं. तो हसन कुछ कहना चाह रहे थे. 1-0 to हैदर भाई. I think he's just salty कि उनकी टीम नहीं खेल रही. लियारी का मिनी ब्राजील और जॉय का ये भी फैक्टर है कि आप फावेलास जो कम्युनिटी लियारी जैसी ब्राजील में है, आप जितने भी ट्रिक्स्टर या जो अकॉम्प्लिश फुटबॉलर्स देखेंगे, रोनाल्डो नजारियो, रिवाल्डो, इवन पहले नेमार, वो उसी ऐसे ही कल्चर से आए जहाँ पे क्रैम्प्ड जगह पर ज्यादा लोग रह रहे हैं और कॉन्क्रीट फुटबॉल खेली जाती है. और जब आपको इतनी क्रैम्प्ड स्पेसेस पे इतने आई बॉल्स में अपने स्किल्स, क्विक फीट एंड अपनी क्या कहते हैं टेक्निकल एबिलिटी कंक्रीट के ऊपर डेवलप करनी पड़ती है, तो व्हेन यू गो टू ग्रास इट कंप्लीटली चेंजेस योर गेम. लियारी से भी ऐसे लोग निकले जिन्हें लियारी का पहले भी कहा गया, जिन्होंने जिस तरह गफ्फार साहब ने बात की कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन वहां से बहुत मिली. सो कम्युनिटीज लाइक फवेला, दैट्स वन ऑफ द रीजंस इट्स कॉल्ड मिनी ब्राजील, एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक द सोल ऑफ पाकिस्तान's फुटबॉल, मच लाइक द कम्युनिटीज ऑफ फवेलास इन ब्राजील. नहीं, और जो सबसे बड़ी बात है, जिस तरह अभी रेहान ने एक्सप्लेन किया, और आई थिंक उसी एक्सप्लेनेशन में पोर्चुगल की भी अब फ़ैन फॉलोइंग लियारी में तो अब नाउ मेक सेंस, क्योंकि आप अब जिस किस्म की ट्रिकरी देखते हैं इन टीम्स में, केयर फ्री फुटबॉल जिस तरह खेला जाता है, दैट इज़ व्हाट अट्रैक्ट्स यंगस्टर्स हु आर गेटिंग इनटू दिस गेम्स. आई मीन योर थॉट्स ऑन दिस? आजकल की जो मॉडर्न फुटबॉल, व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम होलिस्टिक लेंस, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो फ्लेयर एस्क फुटबॉल है जिसमें एक फ्रीडम है, प्लेयर्स जो दिल चाहे कर सकते हैं, जस्ट द ओनली गोल इज टू बीट द इंडिविजुअल इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स द ओनली थिंग दैट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड. So in modern football, we're slowly transitioning away from that. We're going more towards the systematic, don't fool around, just go for it, do this, do that. But जिस हमने देखा है लियारी में जो एक Brazilian flair है, जो कि एक local flair, it just matches everything, and that's why I can see why they enjoy that type of football as well, because culturally as well, the people of Liari have that flair in them, which they identify themselves with that style of football, and it really is something to see, and I hope they get the facilities and they get the support they deserve, so that they can hopefully be the mini Brazil of the world in the future. नहीं, और ये आपने बात की ना, ये आगे चलते हुए हमारे पास अगेन 40 दिन है, जब हम कंपेयर करेंगे ना साउथ अमेरिकन फुटबॉल विद यूरोपियन स्कूल ऑफ फुटबॉल, तो उसके अंदर हमें बड़े मौके मिलेंगे टू डिस्कस दिस. वक्त हो रहा है जी ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लेट्स नाउ गेट डाउन टू बिजनेस. वील स्टार्ट आवर प्रीव्यू ऑफ द फर्स्ट 2 मैचेस ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो खेला जाएगा. पहला मैच जो खेला जाएगा वो होगा मैक्सिको वर्सेस, मैं भूल गया इस वक्त भाई, हाँ सॉरी, मैक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका. मेरी एक्साइटमेंट इतनी इस वक्त चल रही है. मैक्सिको वर्सेस मैच होगा साउथ कोरिया वर्सेस चेकिया. सो वी विल स्टार्ट अ बिल्ड अप टुवर्ड्स दोस मैचेस. वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. Every scar, every fall, every tear on this road was building the fire, was carrying the load. Now the world holds its breath. We're ready to go. One fire burning in every soul. One game, one ball. Gee, welcome back. You're watching Kick Off, and we're counting down to the first game of the FIFA World Cup 2026. It's going to be Mexico up against South Africa, live from the iconic Azteca. लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे साउथ कोरिया
और चेकिया के मैच के बारे में, जो कि आज का दूसरा मैच होगा लाइव फ्रॉम ग्वादलाहारा। ग्रुप ए के ये 2 एक्साइटिंग मैचेस हैं एंड वी एब्सोल्युटली कैन नॉट वेट फॉर द बिल्ड अप। राइट, आई थिंक ज़बरदस्त जो 2 क्लैशेस हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा बिल्डअप भी करेंगे विद आवर पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। रेहान, स्टार्टिंग विद यू, साउथ कोरिया वर्सेस Czechia. South Korea have qualified unbeaten through AFC. Now they come into this World Cup with a lot of confidence. Do you think they'll have the upper hand against Czechia? They should. I think अगर आप फुटबॉल की बात करें तो एक टीम फुटबॉल खेलेगी और दूसरी टीम फुटबॉल डिसरप्ट करने की कोशिश करेगी, और साउथ कोरिया टेक्निकली बहुत गिफ्टेड टीम है। एंड आई थिंक आप सॉन की बात करें कि ही इज़ मे बी नॉट एट द एज, 4 साल पहले उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, अब कम है। पर ली कैंग इन इज़ अनदर टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर। ही प्लेज इन एट PSG, और PSG में इतना टेक्निकल प्लेयर्स है। आप किसी से पूछोगे हु इज़ द मोस्ट टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर ऑन योर टीम, तो उनके अपने जो 7 प्लेयर खेलते हैं वो कहते हैं ये। One of the things that Korea have recently struggled with is उनकी pressing triggers उतने effective नहीं रहे। So वो हो क्या रहा है कि they sometimes go out of shape when they press and they can be hit on the counter, and that's where Czechia will rely on the fact that they'll use their wings and try to get the ball into Schick, who's been playing for I don't know 100 years now, और क्या कहते हैं, बेचारा सिर्फ 30 साल का यार बस ठीक है, आपको 30 साल, आपके लिए बेचारा 30 साल का ना, आपकी उम्र ज़्यादा है तो but I think they are one of the most beautiful teams to watch, South Korea. और South Korea के जो मैनेजर हैं, he was part of the team in 2002 which reached the semi-finals of the World Cup. He was the captain actually, the team that knocked out Italy via golden goal. So I think his influence, he's an absolute legend in Korea. I think his influence on the team is very visible on the kind of football they want to play. और generally South Korean जो उनकी domestic football भी है, अगर आपको थोड़ी सी उसके ऊपर आप खुद जाके देखें तो it's very interesting कि हम बोलते हैं कि ये एक आइडेंटिटी है कि पेप गॉर्डियोला स्टाइल ऑफ फुटबॉल है या फलाने स्टाइल ऑफ फुटबॉल है, उनका एक बहुत यूनिक सेंस ऑफ हाउ दे वांट टू प्ले फुटबॉल है। तो इसलिए यू सी अ लॉट ऑफ टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर्स ऑन द बॉल कमिंग फ्रॉम साउथ कोरिया, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू बी वन ऑफ, नॉर्वे की सारे बात कर रहे हैं सब कुछ, आई थिंक साउथ कोरिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फन टीम्स टू वॉच इन दिस वर्ल्ड कप। लेकिन हसन, अगर हम बात करें हांगबिंग बो पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी होती रही है थ्रू आउट इसमें। इन द बिल्डअप हैज़न्ट बीन ईजी फॉर हिम फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप। लेकिन आप जितने मर्जी बड़े नाम ले लें, जितने मर्जी कर लें, इट्स डिफिकल्ट टू लुक पास सन ह्यून-मिंग, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट हिम। उन्होंने भी अभी रिसेंटली अगेन ट्रांजिशन टू द MLS। हाउ पिवटल इज ही टू द प्लान्स ऑफ कोरिया? I think he is their mainstay in terms of creative spark जो इस टीम में लेके आनी है। टेक्निकल एबिलिटी की रेहान ने बात की, ली के बारे में, he is going to be the person who's going to be feeding ball into सॉन, और उनके साथ ख्वान भी जो स्ट्राइकर, उनकी तरफ भी। तो किसी हद तक आपको ये लगता है कि बड़ी टीम इस चीज़ को भी रिलाई भी करेंगी और उनकी कोशिश होगी कि अगर सॉन को स्टाइफल कर दिया जाए या उन तक किसी तरह जो बॉल की डिस्ट्रीब्यूशन है उसे रोक दिया जाए, तो कहीं ना कहीं साउथ कोरिया स्ट्रगल करेगी। और ये इशू है भी, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है कि जिसको आप रिप्लेस कर नहीं सकते, और वो इतना सेंट्रल है उनकी साइड के लिए। उनकी क्वालिफाइंग कैंपेन में भी ही वॉज इन्वॉल्व इन 14 गोल्स, 10 उनके गोल्स थे, 4 असिस्ट थे, अनबीटन साउथ कोरिया की कैंपेन गई। सो ही इज़ वेरी सेंट्रल टू देम। और जिस तरह की उनकी टेक्निकल एबिलिटी है, जो उनका विजन है, स्पेशली हिज कर्लर्स, एंड पार्ट ऑफ द रीजंस व्हाई साउथ कोरिया इज नॉट एज इफेक्टिव इज क्योंकि सॉन नॉर्मली लीड्स दैट लाइन टू, और वो टॉटनहम के लिए भी बड़े साल ये करते रहे प्रेसिंग के एतबार से भी। और इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं होगी कि अगर साउथ कोरिया प्रेस करते करते चेकिया से ही, जो फिजिकली एक डोमिनेंट साइड है और रिलेटिवली स्लोअर है, उनसे बॉल छीन कर काउंट उधर ही बॉल छीनते हुए क्विक अटैक बनाए और गोल कर दें। दैट्स वन ऑफ द वेज देव स्कोर्ड इन देयर क्वालिफाइंग कैंपेन्स एज वेल। सो इन टर्म्स ऑफ सॉन बहुत की होंगे, वन ऑफ द probable goal scorers भी होंगे। And I think he's only 2 goals away from becoming the all-time goal scorer for South Korea as well. So it will be interesting to see how Czechia counters इसमें सिर्फ एक मैं अबिया से क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। यहाँ पे हमने दूसरी साइड ऑफ द फील्ड पे तो सन ह्यून-मिंग की बात कर ली। आप बायर्न म्यूनिख की फैन है। द डिफेंस right now, the Korean defense relies a lot on Kim Min-jae, right? So let's just quickly talk about him, क्योंकि he hasn't had the best of times at Bayern Munich. वो वाली जो नेपली वाला जो उनका फ्लो था, या एटलीस्ट जो फॉर्म थी, वो हमें नहीं नजर आई। एंड हमेशा हर साल हम सुनते हैं कि he might be transferring out, but Kim Min-jae for South Korea is a completely different player.
Definitely, right now he is not in the best of his forms, but हम जब इस मैच की particularly बात करते हैं, another important thing is that चेकिया जो है वो after 2006 उसकी appearance हो रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर, whereas जब हम साउथ कोरिया की बात करें तो लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर भी साउथ कोरिया qualified for the round of 16 and then former semi finalist है साउथ कोरिया. So definitely इस गेम के अंदर जो डिसाइसिव गेम प्ले होगा वो मिडफील्ड के अंदर होगा. साउथ कोरिया की जो टीम है वो टैक्टिकल फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं, मोबिलाइज्ड फुटबॉल खेलते हैं ज़्यादा, वेयर आज जब हम चेकिया की बात करते हैं तो वो फिजिकलिटी और एरियल स्ट्रेंथ ज़्यादा रखते हैं. सो आई एम स्टिल सीइंग कि कहीं ना कहीं साउथ कोरिया विल विन द मैच ऑन अ 2-1 score today. Wow, आज जल्दी prediction हमें मिल गई है अबिया की, but we will be coming to each of our guests prediction. तो राब चेकिया के ऊपर भी अब थोड़ी बात करते हैं. Tactically, how do you think they would be able to counter the threat of South Korea, especially Son? Well, the interesting thing about this fixture is these are two teams that are completely reliant on two different philosophies. Czechia being more compact with Thomas Souček in the middle anchor. He's an anchor, great on the ball. Great physicality, Premier League proven midfielder, and Czechia is going to be depending a lot on him to win that midfield battle, especially with the experience that experienced midfielders that South Korea have. They have more players with more relatively top tier European experience, which I think gives them a bit over a mentality edge. Maybe not in the best of form, Kim Min-jae, but then again, Bayern Munich centre back, big stage. They perform. These players perform. They're meant to perform. So I think it's just that interesting battle midfield between Souček and the three midfielders that are really going to try and play around that compact three at the back that Czech Republic brings. So it's going to be very exciting and very tactical game. I would lean it to be more tactical than rough. नहीं तो चेकिया की भी स्क्वाड इस वक्त तक हम स्क्रीन पर अगर ले आए तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट देम. यहाँ पर सूचक की तो बात की, अगेन काफ़ी इनकी भी डिस्ट्रप्शन हुई. सूचक कैप्टन थे, फिर कुछ रिजल्ट्स उनके खिलाफ गए, 6-0 विन हुई. उस पर फैंस को जिस तरीके से टीम ने रिएक्ट किया उस पर प्रोटेस्ट हुई, एंड देन सूचक गॉट सैक्ड एज कैप्टन. अगेन दिस इज व्हाट द वर्ल्ड कप इज ऑल अबाउट, द ड्रामा दैट कम्स अलोंग विद इट. लेकिन जब हम इसमें देखते हैं तो अगेन रेहान कूफाल ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस टीम. आपने शिक पे तो ऑटोमेटिकली कॉन्वर्सेशन करी है, लेकिन आई थिंक वन वेरी अंडर अप्रिशिएटेड प्लेयर इज हॉलिश, right, and how he plays. So let's just talk a bit about some of the key members of this team. I think इनकी जो रिलायंस है मोस्टली, और दोनों टीमों का सिस्टम जो है ना, आपने जिन प्लेयर्स की बात की, दोनों टीमों का सिस्टम मुझे डर ही है कि इस मैच में कैंसिल आउट ना कर दे एक दूसरे को, बिकॉज बोथ ऑफ द टीम्स एसेंशियली प्ले विद विंग बैक्स. बिकॉज कोरिया इज अ लिटिल वल्नरेबल, तो आप उनको विंग से, और कूफाल विल कम इन टू प्ले. और एक और चीज़ इनकी टीम की है कि बोथ टीम्स दे हैव सो मैनी प्लेयर्स हु प्ले इन द जर्मन लीग, बोथ टीम्स. सो बेसिकली दे नो हाउ ईच अदर प्लेज एज वेल. तो वो भी एक टैक्टिकल बैटल उसका बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. किम की आपने बात की कि ऑन द स्ट्राइक फ्रंट अगर डिफेंडिंग आप कर रहे हैं, एक टीम क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, और शिक उनका बेसिकली नंबर 9 है, जो कि मैच स्टार्ट होने से पहले ही लगता है कि वो थके हुए हैं ऑलरेडी, बट ही स्टिल स्कोर्स गोल्स. तो आई मीन हिज रोल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन हाउ ही डील्स विद द क्रॉसेस कमिंग इनटू द बॉक्स. फॉर कोरिया इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप पोजेशन, और इस वर्ल्ड कप में आप देखेंगे जो स्लो पोजेशन वाली टीम्स है ना, उनको शायद ज़्यादा एडवांटेज मिले, बिकॉज व्हेन यू आर प्लेइंग एट हाई एल्टीट्यूड मेक्सिको के अंदर, तो आप जितना ज़्यादा ऑफ द बॉल भागेंगे आप उतना ज़्यादा थकेंगे. एंड दैट्स व्हाई आई प्रेडिक्ट अ लॉट ऑफ लेट गोल ड्रामा इन दिस वर्ल्ड कप, स्पेशली फॉर मैचेस दैट आर बीइंग प्लेड इन मेक्सिको. तो आई थिंक इस मैच के अंदर भी द विंग्स ऑफ बोथ टीम्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. South Korea majorly lacks pace defensively on their wings, and that is what can be exploited against them. Turab, you wanted to add something? Yeah, and also a very concerning point for South Korea is that their build-up to this pre-tournament, and 180 minutes they haven't scored a single goal in open play, and being the defensively sound structure of physicality, of brute force that the Czech Republic brings, they might, the size difference, age difference relative to the Czech Republic team might actually make it a bit more of a physical challenge. And especially because both teams are getting used to this climate, so the players with more physicality, a bit more grit in them, I would expect them to actually get the results, not just for this matchup but for other matchups as well. Physicality in the modern game has proved to be a bit more effective in terms of flair, like I previously mentioned, so that's how I see it going as well a little bit. I think एक और चीज़ को जो साउथ कोरिया को बड़ी विजिलेंटली काउंटर करने की कोशिश करना होगी कि चेकिया के 22 में से 11 क्वालिफाइंग में थ्रू सेट पीसेस आए हैं, एंड दैट्स अ मेजर थ्रेट. कुफॉल की भी रेहान ने बात की, हैदर भाई ने बात की, ही इज वन ऑफ द गोना बी वन ऑफ द बिग प्लेयर्स फॉर द चेकिया टीम, इज बिकॉज
जिस क्लब में वो खेलते हैं हॉफनहाइम, उनके लिए भी उन्होंने 9 असिस्ट, एक गोल भी स्कोर किया. ही इज गोना बी दैट कंसिस्टेंट आउटलेट राइट विंग बैक साइड से, जो कोशिश करेंगे कि वो सर्विस अंदर प्रोवाइड करें. एंड देन सेट पीसेस आर गोइंग टू बी की. सो इफ चेकिया आर गोइंग टू बी प्रोबेबली गोइंग टू स्कोर, एक आपको एक स्टैंडर्ड उनका वो कहते हैं ना बेंचमार्क कोई होगा, वो सेट पीसेस के थ्रू होगा. और वो फिजिकलिटी और अपनी जो हाइट का एडवांटेज है उसमें वो पूरी तरह यूटिलाइज करने की कोशिश भी करेंगे. दैट्स वन ऑफ द थिंग्स somehow South Korea needs to make sure they need to counter if they want to win this game. ठीक है जी, और ये मैच सुबह 3 बजे आप देख सकते हैं ब्राय रास्त फ्रॉम क्वालालहरा लाइव ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैपमैट. वक्त हो रहा है छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वील टॉक अबाउट द टूर्नामेंट ओपनर बिटवीन द को-होस्ट मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका. स्टे ट्यून्ड टू पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैपमैट. Welcome back to kick off. We're building up to match number 1 of the FIFA World Cup 2026 right here on PTV Sports and TapMat. अब आज का जो पहला मैच है जिसके हम अभी बात करने वाले हैं, मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका. इट इज़ सो आइकॉनिक, इट्स सच अ वाइब्रेंट इंटरकॉन्टिनेंटल क्लैश. एक तरफ जो है नॉर्थ अमेरिकन जायंट्स हैं और दूसरी तरफ जो है वो एक अफ्रीकन चैलेंजर नेशन है. बहुत एक्साइटिंग होने वाला है आज का मैच, उसका बिल्डअप भी हम अभी करेंगे. बट हैदर, आई हैव हर्ड देयर इज some historic touch to this clash. There is a historic touch to this clash क्योंकि जब 2010 में साउथ अफ्रीका were the hosts तो उनका पहला मैच मेक्सिको के साथ हुआ था and it resulted in one of the most iconic moments of FIFA World Cup history. Let's have a look. The first game, all my friends, we walked, and as we were crossing the local soccer field, I can just remember sirens going off, booters, vuvuzelas. The atmosphere was crazy. That match in South Africa, we knew it was going to be tough. I remember the noise that drowned out the shouts of the Mexican fans who had travelled to South Africa. That's what dreams are made of. That's the beauty of sport. It gives you these moments. My love for football started there. The whole nation will rejoice. We had a good team with talented, high-quality players who we thought could turn the game around. I remember a ball into the box. And a decent ball in with 3 waiting. Surely it has to be. And it is. It was a difficult match. They're always complicated matches, especially the opening ones. It's finished. South Africa 1, Mexico 1. The world stops, the country stops. Then the pressure, the tension increases. That's what we're going to experience now. It's not South Africa v Mexico anymore. Now it's Mexico v South Africa. Shabalala with that goal and then Rafael Marquez coming back with that equalizer. और जो सबसे चीज़ देखने वाली है रेहान यहाँ पर,
Javier Aguirre was still there as the head coach of Mexico, and he's still the head coach of Mexico in this World Cup. Not still, this is third. मतलब yeah. ठीक है, और मतलब वो मैं इस मैच में अगर आप दोनों हेड कोचेस की कंबाइंड एज करें तो 150 साल बनती है. तो but Javier Aguirre has a very interesting career. I think tactically everyone is against him क्योंकि लोगों को लगता है he's too pragmatic. He plays a certain style of football. जो आप एटलेटिको मैड्रिड की आप आइडेंटिटी देखते हैं ना अंडर डिएगो सिमियोनी, इसकी बेस इग्वेरे रख के गए थे. तो वहाँ से एटलेटिको मैड्रिड प्ले द फुटबॉल दैट दे प्ले, द आइडेंटिटी ऑफ द क्लब दैट दे हैव. और बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी ये भी है कि 2015 के करीब जो है इनके ऊपर अलेजिडली मैच फिक्सिंग स्कैंडल भी हुआ था, जिसकी वजह से ही गॉट फायर्ड फ्रॉम वन ऑफ हिज जॉब्स. बट उसके बाद ही वर्कड एट अ लॉट ऑफ अदर क्लब्स एंड लाइक द गाय हैज बीन मैनेजिंग फॉर, आपके बचपन से वो मैनेजर है. अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितना उसकी एज कल करियर स्टार्ट हुआ. अच्छा जी, जल्दी से लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट द मैक्सिकन स्क्वाड. जी आपके सामने स्क्रीन पर अगेन इसमें कुछ बड़े नाम है. ऑब्वियसली बात है, ओचुआ इज प्लेइंग हिज 4th वर्ल्ड कप एज वेल. उनका भी डेब्यू रेहान के साथ 2014 के वर्ल्ड कप में हुआ था, वर्ल्ड कप वाले में. और लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें द नेम दैट एवरीवन स्पेशली द प्रीमियर लीग fans might be looking into is the striker Raul Jimenez, who now plays for Fulham. उस पर काफ़ी ज़्यादा रिलायंस है, लेकिन तुराब अगर एक ग्लेयरिंग मिस है यहाँ पर, that is Irving Lozano, who's not been selected or called up for the World Cup. That is quite massive. That is pretty massive, especially the influence he brings in this team as well. But I don't think this team will miss him that much, given the momentum they're coming in this tournament with. They have won a significant number of their games leading up to this tournament, and especially playing at home. So let's say there's always a saying in football, right? The fans are the 12th player on your team on that night, and 80,000 fans expected as the Aztecs. So maybe if the 11th isn't there, the 12th can come in for the 11th, right? They just have that push, those home fans. And no, they won't be missing him so much, in my opinion, especially because it's a game at home. But later down in a longer formatted tournament, they might miss that real experience that gives them, you know, that difference in those moments that you need players like that. But for the opening game, I'm expecting Mexico to still be as pragmatic as they're coached and drilled to be. Absolutely, and Mexico will be trying to do something else as well in this World Cup, which is break the curse of the Quinto Partido, which is the fact that they haven't qualified past the round of 16 since 32 years. 1994 के बाद उन्होंने इस राउंड के आगे क्वालिफाई नहीं किया, और अब मैक्सिकन फैंस को लगता है कि ये एक कर्स है जो कि उनको ब्रेक करना है. Will they be able to do that? Yeah, I think they'll be very hopeful for that, buoyed by the fact कि वो अपने घर में खेल रहे हैं और वो पहली नेशन बने हैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जो तीसरी दफ़ा किसी वर्ल्ड कप इवेंट को होस्ट कर रही है. और पिछली दोनों दफ़ा 1970s, 1986 में दोनों दफ़ा उनका बेस्ट फिनिश था, विच वाज द क्वार्टर फाइनल्स. तो इस बार उनकी कोशिश होगी कि आइदर मैच दैट और गो वन बियॉन्ड, बिकॉज आप हर स्टेडियम में 16 डिफरेंट वेन्यूज में मैचेस हो रहे हैं. जो आपको अस्टेका में एक माहौल मिलेगा और शोर मिलेगा, वो कंप्लीटली आपको ओवरवेलम करेगा और आपको एक डिफरेंस फील होगा. द पैशन एंड कल्चर of Mexico will shine out. और I think एक्साइटिंग प्लेयर भी हैं, 15 साल के प्लेयर भी हैं. आप देख भी सकते हैं जो फैंस का पैशन है मेक्सिको में. लाइव पिक्चर्स वी आर शेयरिंग फ्रॉम द आइकॉनिक एस्टेका, जहां पे आज का पहला मैच खेला जाएगा बिटवीन मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका. Yeah, and I mean they have players who they will celebrate as well. Quinonez एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके लिए, जिन्होंने जो सऊदी लीग है अल-कदसिया के लिए चौथी पोजीशन उन्होंने हासिल की. वो वाहिद मैक्सिकन क्लब से सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर्स हैं. उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बीट किया इन टर्म्स ऑफ द टैली. स्कोर्ड 33 गोल्स इन दैट सऊदी प्रो लीग, लीडिंग दैट टैली, और अपनी टीम को भी पहली दफ़ा रिकॉर्ड फिनिश पे फिनिश करवाया. तो एक्साइटमेंट है मैक्सिकन के कुछ प्लेयर्स के साथ अभी भी अटैकिंग थर्ड में भी, इवन दो हमें लगता है कि वो एक प्रैग्मेटिक लड़ाई वाली अप्रोच के साथ आ रहे हैं, जो वो करेंगे भी अगीरे के अंडर, लेकिन उनके पास फ्लेयर भी मौजूद है. अच्छा रेहान, जल्दी से थोड़ा सा टैक्टिकली बात कर लेते हैं यहाँ पर. आपने गुएरे की थोड़ी सी बात तो की, बट लेट्स टॉक अबाउट द potential front three that are going to be there: Alvarado, Jimenez and Gutierrez. Let's just quickly talk about them.
and how they transition from one formation to another. I think इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि Aguero usually goes for experience और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे फैक्ट लगा कि Jimenez has never started a World Cup game before despite being in the squad. He's come off as from the bench लेकिन start नहीं किया. And the two players alongside him are the creative outlets. Jimenez की एक चीज़ बहुत underrated है, वो है उसका link up play because he is a target man. हमने पहले शेख की बात की. शेख is a different player. Jimenez का link up play is better. He can drop deep and then what that allows is for both the other runners to go in behind and then create that space. तो मेक्सिको के लिए की चीज़ टैक्टिकली ये है कि वो जो उनका डिफेंसिव ट्रियो है जो कि अल्वाराडो उनके जो मेन डिफेंसिव होल्डिंग मिडफील्डर हैं, टू सेंटर बैक्स, दैट इज बेसिकली वेयर दे नॉट ओनली ट्राई टू कंट्रोल द ऑपोजिशन बट ऑल्सो कीप द बॉल. एंड हम एस्टेका को अंडर प्ले, तो आपने बात की 12th मैन, एस्टेका इज द 13th मैन, 12th मैन इज द क्राउड. 2013 के बाद मेक्सिको हैज नॉट लॉस्ट अ कम्पिटिटिव मैच एट दी एस्टेका. उससे पहले 11 साल वो मैच नहीं हारे थे कम्पिटिटिव एस्टेका के अंदर. और अभी हसन से आपने पूछा कि वो राउंड ऑफ 16 क्वालिफाई करेंगे कि नहीं. अगर वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचे तो इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचेगा क्योंकि राउंड ऑफ 16 में इफ मेक्सिको टॉप द ग्रुप एंड इंग्लैंड टॉप द ग्रुप तो आई थिंक वो मेक्सिको और इंग्लैंड का राउंड ऑफ 16 मैच होगा एट दी एस्टेका, व्हिच इज गोइंग टू बी a lot of fun. और हमें आगे मौका मिलेगा और भी मेक्सिको पे बात करने का. I would really want हम किसी ना किसी मौके पर ओचोवा को भी कोई ट्रिब्यूट दें. लेकिन moving from that scenario, let's talk about South Africa and let's start off with their team and let's start off with their goalkeeper and captain Ronwen Williams, who's the mainstay at the back and the leader. Let's just quickly have a look at what he has to say. Soccer's always been in my family. My entire family played. Parents, sister, brother. My mother was 6 months pregnant with me and she was still playing football. Every weekend I used to go and run around the field when they were training. So my love for football has always been there. My brother, he was my role model. He was my big brother. He was everything. When things were difficult in Johannesburg, he came up to support me. Your brother, Marvin, I was wondering if you could tell us sort of what happened. I can remember it like it was yesterday, 1st of April 2010. I was at the tournament, the Bale tournament in Cape Town. So we were up early and I got a call from one of my friends that I grew up with. And then he just said, he got a call that he passed on, and I dropped the phone immediately. And I just felt like my whole world came to an end. So I went back home. When I boarded that flight, it's probably the toughest moment, sitting alone in the clouds. All I can picture is my brother's face. Can't see myself playing soccer anymore. But then I got a call from my coach and he said, Ronwen, you know that your brother was your number one support and what he wanted for you. From now on, whatever you do it for him. Every game, when I step on the field, I always look up and I dedicate the game to him. I just know that wherever he is, he's proud of his brother, you know, because this was his dream for me to be part of a World Cup. So 16 years down the line, you know, that my brother's dream for me, you know, was come true. What a heart-touching story there of Ronwen Williams and the qualification of Bafana. Bafana 2010 के बाद अब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर रही है. Again, they are there and they will be trying to cause an upset here or there. लेकिन इनकी जो जर्नी थी वो भी कोई इतनी आसान नहीं थी. इन्होंने अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा की थी जब इन्होंने खुद एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरर से लेसोथो को, जिन्हें 2-0 से हराया था, इन्होंने एक अपने सस्पेंडेड स्टार को खिला दिया और वो फिर मैच इन्हें फोरफीट करना पड़ा, जिसके बाद आखिरी दिन तक इन्हें
एटलीस्ट अफ्रीकन क्वालिफिकेशन में नहीं पता चला था कि क्वालिफाई कर रहे नहीं कर रहे, बट देन दे कंफर्म देयर क्वालिफिकेशन. नाउ वी आर शोइंग यू लाइव विजुअल्स फ्रॉम द Azteca as the teams arrive at the stadium. So not long to go before we take you to the opening ceremony of the FIFA World Cup 2026 as well. लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभी इस वक्त टीम्स पर. साउथ अफ्रीका का रोस्टर भी जी इस वक्त सामने अगर हम लगा लें, क्योंकि मैंने जिस प्लेयर का भी आपको जिक्र किया कि जिन्हें उन्होंने सस्पेंडेड प्लेयर को खिला दिया था, दैट इज टीबो मकैना, हु इज ऑल्सो देयर मेन स्टार ऑफ द टीम. Rehan, let's just quickly have a look at some of these players and then just talk about the main system and how they will be trying to approach the matches. साउथ अफ्रीका जो इनके मैनेजर एंड कोच हैं, ही अगेन यू विल यूज दिस वर्ड वेरी ऑफन इन दिस वर्ल्ड कप, प्रैग्मेटिक. इंटरनेशनल फुटबॉल उतनी फ्री फ्लोइंग नहीं होती जितनी क्लब फुटबॉल होती है. इनको इतना चांस नहीं मिलता इकट्ठे खेलने का, तो आफ्टर दैट ये उसके अंदर आते हैं. वन ऑफ द एडवांटेज दैट साउथ अफ्रीका हैव व्हिच पीपल आर नॉट लुकिंग एट इज के मोस्ट ऑफ देयर प्लेयर्स प्ले फॉर ओनली 2 क्लब्स इन साउथ अफ्रीका, द पायरेट्स एंड द सनडाउन्स. तो मोस्टली इनकी स्क्वाड वहाँ से आती है, तो इनकी कोहेसिवनेस शायद उससे ज़्यादा हो. वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इज कि इनके जो कोच और मैनेजर हैं उनके एक सर्टन स्टाइल ऑफ प्ले विच इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, कीप द बॉल, सेंटर हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. और आपने कोयना की बात की, ही इज़ वन ऑफ देयर प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर्स एज वेल. द प्रॉब्लम दैट देव हैड रिसेंटली, अनदर कॉन्ट्रोवर्सी दैट हैपेंड इज़, ये आपने वो बात की, तो there have been claims of racism against him as well, or some of the players are extremely, he's a disciplinarian. तो how he handles a World Cup, because हमने काफ़ी देखा है पुराने World Cups में कि when you have that kind of figure in the dressing room World Cup के अंदर, because इनका भी World Cup का experience नहीं है, although he's 74 years old, तो उसके अंदर जब ऐसे मैनेजर या कोच वर्ल्ड कप पे आते हैं, द प्रेशर ऑफ द वर्ल्ड कप कैन मेक द स्क्वाड इम्प्लोड कंप्लीटली, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ साउथ अफ्रीका मैनेज दैट. राइट. एंड साउथ अफ्रीका की टैक्टिकली भी अगर हम थोड़ी सी और इन डेप्थ भी बात करें तो अभी है एनीथिंग दैट यू माइट वांट टू ऐड. हम थोड़ा सा साउथ अफ्रीका को अगर स्टडी करें, उनका गेम पैटर्न जैसा होता है, थोड़ा सा पेस भी वो ऑफर करते हैं ऑन द काउंटर. डू यू थिंक दैट कुड क्रिएट पोटेंशियल फॉर एन अपसेट? आई थिंक इस मैच के अंदर मेक्सिको वुड बी डोमिनेटिंग ऑन द पोजीशन, बट साउथ अफ्रीका जो है वो काउंटर अटैक के ऊपर नज़र रखेगा. उनका जो गोल कीपर है इन दिस मैच, विलियम्स, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ आइज ऑन द गोल कीपर विलियम्स. देन अगर हम एक प्राइमरी गोल स्कोरर की बात करें तो वी हैव फोस्टर, ही कुड बी अ थ्रेट फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन साइड, जो कि ही कुड गेट अ चांस एंड देन यू नो स्कोर अ गोल. एंड अगर हम उनके एक मिडफील्डर की बात करें, Teboho, we have Teboho in the midfield. वो एक ड्राइविंग फोर्स है साउथ अफ्रीका के पास, बट मोर और लेस साउथ अफ्रीका वुड बी वॉचिंग फॉर द चांसेस टू काउंटर अटैक ऑन मेक्सिको. एंड अगर उनको वो चांस मिला तो यू नो फुटबॉल के अंदर एक चांस इवन इन द लास्ट सेकंड्स ऑफ द गेम इज इनफ टू विन द मैच. सो वन चांस इफ दे गेट इट, नो मैटर, अपसेट हो सकता है. Right. Finally, before we head over to the predictions, and before we put everyone on this spot, Hassan, any last things that you might want to add on this first clash of the World Cup? I think the longer the game goes on, the more pressure is going to be Mexico, and the more the dial is going to turn towards South Africa. क्योंकि वो ये ऐसी गेम है मेक्सिको के लिए एट होम फर्स्ट गेम के, वो चाहेगी कि वो इसे विन करे, जल्दी स्कोर करे. तो अगर साउथ अफ्रीका इस चीज़ को मेंटेन कर सकती है कि वो उन्हें फ्रस्ट्रेट करे और गोल ना होने दे. रॉनवेन विलियम्स की एक की जो रीज़न है, उन्हें कप्तान भी बनाया गया है क्योंकि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है बॉल की. और जैसे आपने कहा, उनकी कोशिश ये होती है कि काउंटर पे अपने विंगर्स के पास स्पेस पे बॉल दी जाए और उस स्पेस को यूज़ किया जाए, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी साउथ अफ्रीका को. अगर जितना लंबा टाइम 0-0 पर जाता रहा, दैट्स वन थिंग आई विल से. टैक्टिकली इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग मैच. दोनों तरफ, एक तरफ रेहान ने बात की पायरेट्स और सनडाउन्स, डॉर्टमंड के खिलाफ उनका क्लब वर्ल्ड कप में मैच था, दे टुक देम टू 4-3. इट वाज सच एन एक्साइटिंग टीम. तो बड़े की प्लेयर्स उस टीम के इस टीम का भी हिस्सा हैं. इट्स गोइंग टू बी एन रियली इंटरेस्टिंग गेम फॉर ऑल ऑफ अस. Right, I think it's time now to head for our predictions. Expert predictions by Lays. No Lays, no game. चलें, I think let's segue now into asking our experts कि दोनों गेम्स की प्रेडिक्शंस उनकी क्या है. अभी यहाँ ने थोड़ा सा हिंट हमें बीच में दिया था कि वो किस प्रेडिक्शन के साथ जाएंगे अपने पहले मैच में, लेकिन डू यू वांट टू स्टार्ट विद द सेकंड गेम? नो, लेट्स स्टार्ट विद अभी दोनों मैचेस का बताएं भाई, हम हिसाब रख रहे हैं यहाँ पर. आप सबको काउंटेबल रख रहे हैं भाई. मैंने साउथ कोरिया और चेकिया की, आई एम प्रेडिक्टिंग दैट साउथ कोरिया वुड विन द मैच 2-1.
और अगर हम मेक्सिको और साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो मेक्सिको बीइंग द फेवरेट्स ऑफ कोर्स वुड विन द मैच 2-0 एज पर माई प्रेडिक्शन। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी दैट मेक्सिको टूर्नामेंट का यंगेस्ट प्लेयर खिला रही है 17 ईयर ओल्ड गिलबर्टो मोरा। सो आज के मैच के अंदर इट वुड बी हिज फर्स्ट डेब्यू, 17 ईयर ओल्ड यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड कप। सो उसके ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा नजर होगी। वो हमें मौका मिलेगा आगे उस पर बात करने का। हसन चलें जी, जल्दी जल्दी प्रेडिक्शन दें जी। साउथ कोरिया 2, चेकिया 1। ठीक है। Mexico 2, South Africa I think will get a goal 1। ठीक है जी तुराब। I actually had the same prediction for Mexico versus South Africa. An interesting fact actually that fact अगले 40 दिन टाइम शॉर्ट है, ओपनिंग सेरेमनी पे जाना है। And then the next one a draw. I got a 1-1 draw. अच्छा क्या ये किसका? For South Africa and for South Korea and the Czech Republic. You think that's going to be 1-1 और यहाँ पे 2-1 correct? जी रेहान। 3-0 to Mexico. And for the sake of football, I hope South Korea wins 2-0. 2-0. Okay जी रोहा। Right, I think I'm also going to go with Rehan's prediction 3-0 to Mexico. Would love to see Mexico win on their home soil और वो भी पहला मैच। और सेकंड मैच मुझे लगता है कि ड्रॉ हो सकता है, but still I'm going to go 2-1 for Czechia. ठीक है जी, ये थी हमारी एक्सपर्ट आपकी की तरह प्रेडिक्शन। क्या? एक सेकंड, जो रिजल्ट होगा मेरी Italy 2-0। Italy 2-0। Accountability start from yourself। Italy 3-0 हो चुका है। 3-0। यार ओपनिंग सेरेमनी नहीं, मैं आप लोगों को ऑफर बता दूंगा। नहीं आप यार हमें अच्छा भाई मेरी प्रेडिक्शन सुन ले यार जल्दी सुन ले। ठीक है, फोन गिफ्ट होगा जिसका सही पॉइंट है। साउथ कोरिया वर्सेस चेकिया, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 2-1 टू साउथ कोरिया। Mexico versus South Africa is going to be 2-0 to Mexico. This is my prediction. ये थी जी हमारी predictions. Thank you so much for joining us for this opening day show of the FIFA World Cup 2026. आप देख रहे थे किक ऑफ ऑन PTV Sports and TapMad। अब आपको लेकर चलेंगे बराह रास्त टू दी एस्टेका जहां पर होगी ओपनिंग सेरेमनी। हमारी इस ब्रेक के बाद हम अपना शो आज कंक्लूड कर रहे हैं। 12 बजे के बाद आप जो अगला मैच हो, मुझे पता है मैंने 3 बजे कहा था लेकिन सुबह 7 बजे होगा, वो भी आप बराह रास्त देख सकते हैं ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैड। कल तक के लिए हैदर अजहर और रोहन नदीम को इजाजत दें। खुदा हाफिज।